Hi everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, we will take a look at the third RC passage from CAT 22 slot 1, the morning slot 8 to 10 a.m. wala. Okay? So without further delay, let's go and take a look at the passage. Okay, so before we begin, this video is going to be unusual in the sense that I'm starting it with some three outright announcements or three disclaimers of sort. The first one is that this video is going to be a combination of English plus Hindi. Given the story written in the passage, the topic, the genre, if I speak in pure English, it is going to become a kind of sleeping pill, a snooze fest for literally every person watching this video. Okay? So in the interest of a broader section of people, ताकि आपका मकसद ये वीडियो देखते हो फुलफिल हो of understanding what is to be done in passages like this, I'll move in between English and Hindi depending on the conversation that is going to happen. Second, length of this video might go longer because the narrative in the passage as well as the questions really tough. Okay, there is literally no other way of saying this thing. पैसेज में तो इन्होंने ढेर सारी बातें की ही है, साथ ही साथ जिस इंसान ने भी ये क्वेश्चंस बनाए, डेडली, रियली डेडली, मतलब कुछ तो बहुत ही डेंजर मूड लेकर आया था वो इंसान ये पैसेज बनाते वक्त, और कुछ तो डेविल टाइप माइंडसेट दिख रहा है उसका. ओके, विल गो एंड टेक अ लुक एट द क्वेश्चन. ऑनेस्टली नहीं है आसान. Okay. And a third one, and a very, very controversial sort of disclaimer or advice that I'm going to give out now. Take it with a pinch of salt. Don't take it personally. I'm speaking from my own personal narrow experience. Okay. And what is that? It is simply ये passages को छोड़ दो. Don't break your head over passages like this. Time and again, I keep on meeting aspirants who get very worried about passages like this. And indeed, उनकी चिंता, उनका worry is not misplaced. If passages like this come in the exam, तो चिंता की बात एकदम legit है कि यार practice कहाँ से करे कि ताकि ऐसे passages जमने लगे. So the good news here, at least from my observation, is that you can make it in the exam. You can get a really good percentile without bothering yourself regarding passages like this. ऐसे आरसी पैसेजेस करके, इनकी चिंता करके, यू आर हार्मिंग योर ओन कॉन्फिडेंस. और ऐसा क्यों? तो आई हैव रियली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा बैकिंग दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ माइन. सेम स्लॉट में अभी हम RC3 डिस्कस कर रहे हैं, स्लॉट 1 का. आप RC1 और RC2 सेम स्लॉट का जाके देखो, खास करके RC1 देखो. So lame that even a 10th standard student will be able to solve it. And the number of questions are the same. 4 questions उस passage में भी है, इसमें भी 4 questions है. Weightage given is also the same, +3 -1. So at least overtly जितना information हम openly जानते हैं, you are not going to get any extra brownie points for dealing with passages like this in the exam. ठीक है? तो समझ लो आपने एग्जाम में टाइम डाला ऐसे पैसेजेस करने में, इनके शायद आपने 4 में से 2 या 3 क्वेश्चन सही भी निकाल लिए, तो नोबडी इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू फॉर दैट कि भाई क्या हीरो वाला एक्ट कर दिया आपने, प्लीज इनको डबल मार्क्स दो क्योंकि इन्होंने डबल डिफिकल्टी वाला चीज सॉल्व किया. नो, द पे ऑफ एटलीस्ट ओपनली दैट वी नो इज सेम. अब जब वो रीबैलेंसिंग होता है, स्केलिंग होता है मार्क्स का डिपेंडिंग ऑन द स्लॉट, आई डोंट नो, वो एक ब्लैक बॉक्स है, वहां पे किस तरीके से देखा जाता है. बट एटलीस्ट जब आपका रॉ स्कोर आता है, तो वी ऑल नो दैट द वेटेज गिवन टू ईच क्वेश्चन इन एनी गिवन सेक्शन इज द सेम. ठीक है? सो इफ यू आर अ pragmatic aspirant, and this advice holds true for 99% of the aspirants out there, ऐसे पैसेजेस का बिल्कुल लोड मत. Okay. Rather, if you are somebody who is anyway worried about VRC ना, मैं तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन दूंगा ये वीडियो मत देखो. Okay, I might be the perhaps the only stupid tutor out there recommending you not to watch my own video. But yes, your overall interest, your overall confidence is what uh, is my biggest concern. Okay. So anyway, enough of gyan. Let's begin with the passage. Assuming that you have chosen to go ahead and still see what this passage was about, and maybe you have a goal of trying to understand कैसे passages को handle कैसे करते हैं. So with that interest in mind, I am going to take a look at this passage in a different way than the other videos that I have made. In this, I'm going to take a look at this passage
पैरा बाय पैरा एज एन एस्पायरेंट, क्योंकि ऐसे आरसी पैसेजेस को प्रॉपरली क्रैक करने के लिए वी नीड अ ह्यूमैनिटीज एक्सपर्ट, बिकॉज द जॉनर ऑफ दिस आरसी पैसेज इज डेफिनेटली ह्यूमैनिटीज, एज यू कैन सी एक्सट्रीमली एब्स्ट्रैक्ट है नैरेटिव में, हार्डली एनी रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जाम्पल गिवन टू अस एनीवेयर, ओके, एंड एक्सट्रीमली थेरोटिकल, क्या बातचीत हो रही है 100% आप बिल्कुल खुद से एक्सपेक्ट मत करो पूरा कॉम्प्रिहेंड होगा, ओके। सो ह्यूमैनिटीज एक्सपर्ट तो है नहीं, अभी आपको मुझसे ही काम चलाना है इस वीडियो में एटलीस्ट, तो एक एस्पायरेंट किस नजर से देखना चाहिए इसे, वैसा हम देखेंगे, ओके। सो वन थिंग दैट आई कीप ऑन रिकमेंडिंग व्हेन हैंडलिंग पैसेजेस लाइक दिस इज दैट मेमोरी मैपिंग, या फिर चलो आप दिमाग पे लोड नहीं डालना चाहते हो तो पेन से एक लिस्ट, छोटी सी लिस्ट बनाते चलो, वेर यू आर प्लॉटिंग द रिलेटेबल, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिमेंबर टर्म्स पैरा बाय पैरा। फॉर एग्जाम्पल रिलेटेबल है कि 1 और 2 में आप देख सकते हो दो क्रूशियल टर्म्स दिख रहे हैं आपको, दे हैव मेंशन्ड दिस थिंग एज क्रिटिकल थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजी, और कार्ल मार्क्स का भी नाम है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी ऑप्शन जहाँ पे आपको कार्ल मार्क्स वगैरह दिख रहा है, यू कैन गो एंड रेफर पैरा 1 एंड पैरा 2 ओनली, बिकॉज वी कैन सी दैट कार्ल मार्क्स का नाम और कहीं पर भी नहीं है पैसेज, ओके। सो इंस्टेड ऑफ हंटिंग हियर एंड देयर कि भाई किसने किधर क्या बोला, आप बस इतना भी अगर आपने लिख दिया कि कार्ल मार्क्स और क्रिटिकल थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजी ये पैरा 1 और 2 में है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट रिटेन दिस एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन कंप्लीटली इन आवर माइंड, तो इसलिए रेकमेंडेड है कि आप इस तरीके की लिस्ट बनाते चलो, ओके। सो लेट मी हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाट इज डिस्कस्ड इन द फर्स्ट 2 पैरास, देन विल गो टू द थर्ड वन। वन अनदर थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक अबाउट दिस आरसी पैसेजेस कि टॉपिक तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है ही है, the amount of information that has been dished out in this short write-up is too much to digest. And add to that the ticking timer and the pressure of solving the 4 questions. Honestly, very, very unreasonable passage. Extremely confident I am when I say this, that this passage was meant to be dropped rather than attempted. Okay? एक प्रॉपर ओपन ट्रैप की तरह आपके सामने ये एग्जाम स्लॉट में दिया गया है, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। Nonetheless, let's go take a look at what para 1 says. It says कि देखो एक थ्योरी है क्रिटिकल थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज अ पॉलिटिकल थ्योरी, अच्छा ठीक है, एंड इट बिलोंग्स टू अ ट्रेडिशन जो कि कार्ल मार्क्स से लेकर फुकॉल्ट वगैरह ऐसे थिंकर्स का है। एंड व्हाट इज दैट थिंकिंग? क्रिटिकल थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजी क्या बोलती है कि देखो हमारे सोसाइटी में एक पर्टिकुलर सिस्टम आता है जहां पे वी ट्राई टू फॉरवर्ड, जहां पे वी ट्राई टू पुश ह्यूमन राइट्स, और साथ ही साथ बैकग्राउंड में सेंट्रलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन पावर का होते जाता है। सो अगर मैं पेन से प्लॉट करने जाऊँ तो इट्स लाइक कि ऑन द फेस ऑफ इट व्हाट इज हैपनिंग कि आप ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे हो, हियर एचआर मींस ह्यूमन राइट्स, ओके। ऑन द फ्रंट दिस इज बीइंग शोन, बट बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है? बिहाइंड द सीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर चल रहा है जो आपको दिखाया नहीं जा रहा, आपका फोकस सिर्फ इसी चीज के ऊपर में रखने की कोशिश की जा रही है, बिहाइंड द सीन्स कुछ अलग मस्ती हो रही है वहां पे, ओके। दिस इज व्हाट people ranging from Karl Marx to Foucault to even this theory says कि this is what happens in a society, ठीक है। तो what about it? What about this? तो कार्ल मार्क्स says कि देखो ये तो ना होते ही रहेगा when it comes to capitalist form of production। कहीं पर भी आप कार्ल मार्क्स पढ़ो ना तो यू नो आप पकड़ सकते हो कि ये भैया ना अभी कैपिटलिज्म की पक्का कुछ ना कुछ गाली मारेंगे। जितना मैं जानता हूँ कार्ल मार्क्स और उसके ओपिनियन थेरीज के बारे में, तो ही हैज रियली एंडलेसली डिस्ड एंड बिच्ड अबाउट कैपिटलिज्म इन एनी वे एंड फॉर्म पॉसिबल, ओके। बट मूविंग ऑन टू व्हाट द पैसेज गोज ऑन टू से, इट सेज कि देखो यार सिर्फ कैपिटलिज्म वाले प्रोडक्शन के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, इट ऑल्सो मार्क्स मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस इन आवर सोसाइटी इंक्लूडिंग सो कॉल्ड सोशलिस्ट सिस्टम्स। और ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना जरूरी है सेकंड पैरा में, बिकॉज वी हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस। इट इज एक्सप्लेन कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम्स है कि यार बहुत बड़ा लेबर फोर्स है, बहुत बड़ा वर्क फोर्स है, इनको लीड कौन करेगा, इनको कमांड कौन करेगा। इसलिए ये जो सिस्टम है कि सामने ह्यूमन राइट्स का बोलबाला करो बट पीछे बिहाइंड द सीन्स पावर इज गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू इंस्टीट्यूशंस एंड पीपल, दैट इज गोइंग टू हैपन। एंड हाउ डिड इट हैपन? उसके रूट कहाँ है? तो उसका रूट है प्रॉब्लम रिगार्डिंग लीडिंग डिसएम्पावर्ड और डी स्किल्ड
एन अनऑर्गेनाइज लेबर फोर्स। और इसके बाद में ऑथर ने खुद की तरफ से और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है बट बोल के। ऑथर सेज कि ये बात सिर्फ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लेकर नहीं है, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल जब मासेस आर ऑर्गेनाइज्ड। द सेम पैटर्न प्रिवेल्स व्हेन मासेस आर ऑर्गेनाइज्ड ऑल्सो। वेरी इंटरेस्टिंग टेक। ढेर सारा इंफॉर्मेशन कमिंग इन द 3-4 sentences only of the second para. I'll repeat it once again. जो फर्स्ट पैरा में प्रोक्लेमेशन किया है, सामने ह्यूमन राइट्स का बोलबाला, पीछे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। कार्ल मार्क्स सेज ये कैपिटलिज्म का रूट है, कैपिटलिज्म के थ्रू आया है। और ऑथर कहता है ये सिर्फ कैपिटलिज्म नहीं, आज ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूशन में एप्लीकेबल है। और इसकी असली रूट कहाँ है? बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स, वी हैव अ लॉट ऑफ लेबर फोर्स, वेदर दे आर ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड, उनको लीड कैसे करे, उनको लीड कौन करेगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गिविंग राइज टू दिस concentration of power. And then author is coming back to his agenda in the passage by saying कि टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल डिजाइन भी इसी ऑर्डर में, इसी कॉन्टेक्स्ट में गिरते हैं। ओके, एंड दैट्स इट। एंड ही सेज कि हमको रिलीज करना है टेक्नोलॉजी को इस संकट से, इस प्रॉब्लमेटिक सिनारियो से। ओके, चलो अभी तक का देख रहे हो आप, दो ही पैराग्राफ में कितना एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन हो गया। एंड यस, दैट इज गोइंग टू बी द केस। ओके, एज आई सेड राइट एट द स्टार्ट, क्रेजी क्रेजी पैसेज। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पैराग्राफ के ऊपर। ओके, एज यू कैन सी इवन आई एम नॉट 100% clear about what the passage wants to say. I am just underlining, trying to remember important mentions here and there. And in the questions also I will play with the same playlist कि अगर रेलेवेंट पार्ट से क्वेश्चन है तो मैं अटेम्प्ट करूंगा, अगर नहीं है तो भैया स्किप करने में ही होशियारी है। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ पे जाते हैं। व्हाट डज इट से? इन लाइन विद दिस थॉट, ओके, इन अकॉर्डेंस विद दिस लाइन ऑफ थॉट, वंस अगेन कमिंग बैक टू क्रिटिकल थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, ये क्या बोलता है कि आपकी जो टेक्नोलॉजीज है ये एक एनवायरमेंट है, दे आर नॉट अ सेट ऑफ टूल्स, दे आर एन एनवायरमेंट इन देमसेल्व्स। और एनवायरमेंट मतलब माहौल हमारे आसपास का। तो यस, ऑथर गोज ऑन टू से कि हमारे टेक्नोलॉजीज इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम जिंदगी कैसे जी रहे हैं। ओके, तो अगर आपको अच्छे से एनालिसिस करना है कि हाउ टेक्नोलॉजी एज एन एनवायरमेंट हैज इम्पैक्टेड अस, यू शुड गो एंड टेक अ लुक एट द हिस्ट्री ऑफ बाइसिकल, इलेक्ट्रिकल राइटिंग जो हमारे घरों पे होती है, रादर इवन वेपन्स। तो इनसे हमारी सोसाइटी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है, किस तरीके के चेंजेस आए हैं सोसाइटी में, यू गो एंड स्टडी, you will understand yes, technologies are an environment, they influence us very strongly. Okay, so this is what the third para is broadly saying. Of course डेप्थ में जाओ तो और भी बहुत सारा मैसेज निकल सकता है, बट सरफेस लेवल मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान अगर पढ़े तो दिस इज माय टेक अवे। लेट्स गो टू द फोर्थ पैरा। दिस इज एक्चुअली द मोस्ट डुएबल, मोस्ट अंडरस्टैंडेबल पैराग्राफ इन द इंटरनेट। अच्छा बोला है इसने कि एज फार एज वी आर टेकिंग अ लुक एट टेक्नोलॉजी एज एन एनवायरनमेंट, जो कि हमारे को, हमें शेप करता है, हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। तो इन दिस मैटर टेक्नोलॉजी इज रिजेंबलिंग, टेक्नोलॉजी इज वेरी सिमिलर टू लॉज एंड कस्टम्स। लॉज, कस्टम्स, टेक्नोलॉजीज क्या करते हैं? दे शो अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर टू अस, they show a particular aspect of human nature to us, privileging certain dimensions of human nature. और आगे ऑथर ने एक्सप्लेन किया है बाय एलैबोरेटिंग इट कि आप अगर देखते हो किसी सोसाइटी में जहाँ पे लॉज ऑफ प्रॉपर्टी है, कि किसका कौन सी जमीन, किसका कैसा बंगला, किसकी कैसी गाड़ी, ओके, तो ये लॉज आपको ये शो करेंगे कि पीपल इन दो सोसाइटी दे आर इंटरेस्टेड इन ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ, ओके। अगर आप एक सोसाइटी देखते हो जहाँ पे कस्टम है, जहाँ पे पेरेंट्स का ऑथोरिटी ओवर चिल्ड्रन इज एक्सेप्टेड, तो फ्रॉम दैट व्हाट यू कैन इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ दोस पीपल, दैट दे आर इंटरेस्टेड इन बच्चों का ग्रोथ, इन बच्चों की परवरिश। सिमिलरली इफ यू टेक अ लुक एट अ सोसाइटी जहाँ पे गाड़ियां बिक रही है, जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स एग्जिस्ट, तो दिस शोज दैट पीपल आर इंटरेस्टेड इन मोबिलिटी, पीपल आर इंटरेस्टेड इन गोइंग अराउंड, मूविंग अराउंड। So of course automobile here is an example of a technology, ये आपको ध्यान में, ठीक है। So all in all the fourth para is trying to say, what is it saying? Let's plot it down.
फोर्थ पैरा इज सेइंग कि टेक्नोलॉजी, लॉज, कस्टम्स, इनके अंदर सिमिलैरिटी है इन द सेंस दैट दे represent human nature in some way, represent particular aspect of human nature. ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दिस पैराग्राफ, क्योंकि आगे क्वेश्चन भी है इस पर। ठीक है, अब आता है फिफ्थ और सबसे घटिया, सबसे अनबेरेबल पैराग्राफ इन द एंटायर। ओके, एंड इट इज अ सैड थिंग कि एक क्वेश्चन इसके ऊपर है, फिफ्थ पैरा के ऊपर। फिफ्थ पैरा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्फेशन, मुझे भी पूरा बाउंसर गया है। ओके, बाय नो मीन्स कैन आई come around to explaining fifth para to you properly. Mostly, only the first line is understandable to me. What does it say? This notion of representation does not imply eternal human nature. और इसका मीनिंग क्या है? बहुत ट्विस्टेड तरीके से एक ही मीनिंग है। ये जो हमने अभी ऊपर देखा ना, सिमिलैरिटी बिटवीन टेक, लॉज एंड कस्टम्स, ये इटरनल नहीं है, मतलब कि इट इज सब्जेक्ट टू चेंज, इट इज नॉट समथिंग परमानेंट। ये बात ध्यान में रखो। मतलब कि जो सिमिलैरिटी ऑथर ने पेंट की है फोर्थ पैराग्राफ में, फिफ्थ पैरा गोज ऑन टू से दैट दिस इज नॉट परमानेंट, दैट्स इट। ठीक है, तो ये बात एक नोट डाउन कर लेंगे हम। दिस इज समथिंग नॉट परमानेंट, दिस इज व्हाट फिफ्थ पैरा इज सेइंग। और उसके बाद में द ओनली टेक अवे दैट आई कैन गेट इज कि यार फ्रैंकफर्ट स्कूल के लोगों ने, ये फिलोसोफर्स, ये एक्सपर्ट्स ने कुछ एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया है, बट व्हाट अल्टरनेटिव दे आर गिविंग goes totally completely bouncer now. Okay, that's it, that's it. So as you can see, the comprehension in this passage is very very weak. Okay, the plotting of information also that we could do is also not very strong. तो इसलिए क्वेश्चन भी हम बहुत शांत दिमाग से सोच समझ कर ही अटेम्प्ट करेंगे. So I would recommend that you plot down the concept, the takeaway points that we have jotted down from the first 3 4 paragraphs, whatever we understood, and then let's go take a look at the questions. Okay, coming to the first question, what does it say? It says that which of the following the sorry contradicts the arguments of the passage. मतलब तीन ऑप्शन आपको as far as passage information जो concerned है ट्रू मिलेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा जो कि शायद फॉल्स है, नॉट इन लाइन विद पैसेज, दैट इज योर आंसर. ओके, सो लेट्स वॉक थ्रू द ऑप्शंस वन बाय वन. प्रॉब्लम ऑफ कमांड ओवर अ डिसएम्पावर्ड डी स्किल्ड लेबर फोर्स. इमीडिएटली आपको आपका मेमोरी मैप देखना है. कहां पर बात की है ये कि लोगों को, जो लेबर फोर्स को कमांड करना है, वो कहां पे दिया है? इट इज गिवन ओवर हियर वेयर आई एम मूविंग माय पॉइंट नाउ. ओके, सो बस इस तरीके से आपको कंफर्मेशन लेते रहना है. नाउ व्हेन एनालाइजिंग ऑप्शन है, आई शुड नॉट बी फुलिश इनफ टू हंट फॉर इट इन द फोर्थ पैरा, फिफ्थ पैरा वगैरह. मुझे पता है कि ये बात सिर्फ यहीं पे की है, तो आई विल स्टिक टू द नैरेटिव ओनली हियर. दिस इज हाउ यू कैन होप टू क्रैक दिस पैसेज. ओके, व्हाट डज इट से कि जो प्रॉब्लम है रिगार्डिंग लीडरशिप ऑफ अ बिग लेबर फोर्स, इसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ऑफ कैपिटलिस्ट रैशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. yes, is that the case? Let's go and confirm. Yes, it is right. This trajectory arose, कौन सा ट्रैजेक्टरी जो ये कार्ल मार्क्स यहाँ पे बोल रहे हैं, attributed this trajectory of capitalism वाला, ये कहाँ से निकला? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम. सो इसी चीज को क्रोनोलॉजी थोड़ा सा घुमा के बताया है, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस करके दिखाया है कि प्रॉब्लम्स ऑफ कमांड गेव राइज टू सिमिलर पैटर्न्स ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन एंड इवन वेयर masses वर ऑर्गेनाइज्ड. Every word needs to be cross-checked and confirmed with the passage. Masses are organized, yes. Masses are organized, same pattern prevails. So yes, इन तीन चार लाइंस में फिर से जाकर आप देख सकते हो that this is in line with the information given in the passage. It is true, not a answer. It is true. Second option, मार्क्स का अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपिटलिस्ट रैशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. मतलब फर्स्ट सेकंड पैरा में जो ज्ञान दिया है, मार्क्स भैया जो गाली मार रहे थे कैपिटलिज्म को, और मिस्टर मार्कस का अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट. ओके, मार्कस भैया कहाँ पे दिए है? मार्कस भैया यहाँ पे है. ओके, इन्होंने भी कुछ तो बोला है. तो ऑप्शन से कि इन दोनों के थेरीज में ना
एक कॉमन थेरोटिकल इंक्लिनेशंस है। अच्छा जी, इज दैट द केस? यस इट इज। कैसे? तो सिंपल वे ऑफ एनालाइजिंग दिस, मार्कस भैया क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग, बट कैन यू सी द यूसेज ऑफ वर्ड हाउएवर इन कॉन्ट्रास्ट अपोजिंग वगैरह वगैरह? rather when trying to explain to us ki what Marx bhaiya is thinking, what his thought process regarding the society is, उसी के इन लाइन में author has chosen to mention Marcus also without the use of contradictory words like but, yet, however, and within the same paragraph. तो कहीं ना कहीं आप हल्का सा इन्फरेंस निकाल सकते हो कि बोथ मार्क्स एंड मार्कस आर ब्रॉडली एटलीस्ट इन द सेम थॉट प्रोसेस का लाइन। भले ही एग्जैक्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, द टर्म्स दैट दे आर यूजिंग आर वास्टली डिफरेंट, बट जिस तरीके से लिखा है उसके दम पे आप थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि नहीं, ये स्टेटमेंट ऑप्शन बी वाला मुझे तो सही लग रहा है फिलहाल। तो इसलिए आई विल नॉट से दैट ये फॉल्स है स्टेटमेंट, आइदर इट इज ट्रू लग रहा है फिलहाल के लिए, तो लेट्स पुट इट ऑन होल्ड। ऑप्शन सी और डी को एनालाइज करो। पैराडॉक्सिकली, मतलब लॉजिक के अपोजिट जा रहा है। क्या बात? कि कैपिटलिस्ट रैशनलाइज ऑफ प्रोडक्शन इज अ मार्क ऑफ सोशल सिस्टम्स ऑल्सो। मतलब जो प्रॉब्लम है ना ये कैपिटलिज्म वाला, जो कार्ल मार्क्स भैया जिसके प्रति रो रहे हैं, इट इज टू बी फाउंड इन सोशलिस्ट सिस्टम्स ऑल्सो। एग्जैक्टली, बैंग ऑन पॉइंट, वेरी इजी टू पॉइंट आउट कि मार्क्स ने जो रोना धोना मचाया है कैपिटलिज्म के ऊपर, ऑथर इज सेइंग कि इट मार्क्स मेनी इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग सो कॉल्ड सोशलिस्ट सिस्टम। डेफिनेटली दिस इज व्हाट ऑप्शन सी इज आल्सो सेइंग। तो इसीलिए दिस इज ट्रू as far as what the passage says and hence not the answer। अब आता है ऑप्शन डी, बहुत इंटरेस्टिंग, और आंसर डी ही है। क्यों? क्या कहता है कि जनता ऑर्गेनाइज कौन से पैटर्न्स में की जाती है? एक तो फोकॉल्ट के प्रिजन्स या फिर हेबरमास का पब्लिक स्फीयर। इज दिस व्हाट द पैसेज सेज? नॉट रियली। एक बार ध्यान से देखो क्या बात की। मासेस आर ऑर्गेनाइज, ओके, मासेस आर ऑर्गेनाइज, और एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या दिया है हमें ऑथर ने? एग्जाम्पल है फोकॉल्ट के प्रिजन्स या फिर हेबरमास का पब्लिक स्फीयर। मतलब कि एनालॉजी से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मासेस आर ऑर्गेनाइज मतलब ये है एक फ्रूट बास्केट या फिर फ्रूट्स का सेट, और फोकॉल्ट प्रिजन और हेबरमास वाला जो एग्जाम्पल है ये है, पकड़ के चलो, मैंगो और ऑरेंज। मतलब कि masses आर ऑर्गेनाइज्ड, दिस इज अ ब्रॉड सेट। फोकॉल्ट प्रिजन, हेबरमास, पब्लिक स्फीयर, ये उसके एग्जाम्पल्स है, ये कंप्लीटली उसके सबसेट। ठीक है, बट व्हाट डज ऑप्शन डी सेज? एनालॉजिकली व्हाट डज इट मीन? कि फ्रूट्स वो है जो मैंगो और ऑरेंज की तरह दिखते हैं, या फिर फ्रूट्स वो है जो मैंगो और ऑरेंज डिक्लेयर करेंगे कि हाँ ये रहा बंदा, ये फ्रूट है। वेट, व्हाट? इज दैट द केस? नो वे एट ऑल, कैन नॉट हैपन दैट। ओके, सो ऑप्शन डी इज अ हेवी डिस्टॉर्शन। रादर ऑप्शन डी के अंदर जो स्टेटमेंट है, अगर उस स्टेटमेंट को हमें सही बनाना है तो इट शुड बी चेंज लाइक कि मासेस आर ऑर्गेनाइज्ड इन पैटर्न्स, एग्जाम्पल फोकॉल्ट के प्रिजन्स एंड हेबरमास का पब्लिक स्फीयर। अगर ऐसा होता तो देन स्टेटमेंट डी वुड बिकम ट्रू, बट ऑफ कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेटमेंट डी इज एक्चुअली फॉल्स, दैट इज व्हाई इट इज द आंसर। ओके, और ऑप्शन बी जिसके बारे में अभी तक डाउटफुल थे, ऑफ कोर्स वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो सेकंड पैराग्राफ के ऊपर ही था पूरा क्वेश्चन। ऑफ कोर्स रिस्की, नॉट इजी, नोवेयर एम आई सेइंग कि डुएबल है, जम जाना चाहिए था आपको वगैरह वगैरह। इजियर सेड देन डन। राइट नाउ व्हेन आई एम अटेम्प्टिंग इट, मेरे ऊपर कोई टाइमर का प्रेशर नहीं, मेरे कोई मार्क्स दाव पर नहीं, तो इसीलिए ऐसे ज्ञान देना मेरे लिए आसान हो जाए अगर मैं वीडियो में आपको बोलूँ तो। बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। आई वॉन्ट टू टेल यू कि क्वेश्चंस एंड पैसेजेस लाइक दिस ऑनेस्टली बेस्ट स्किप्ड इन द एग्जाम। चलो क्वेश्चन टू पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड बी इन्फर्ड एज सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पैसेज? मतलब ऑथर ने जो भी हमें इतना सारा ज्ञान दिया है पैसेज में, उसके इनलाइन होना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो ऑप्शन जंपिंग करते हैं, उल्टे से स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन डी को देखते हैं पहले। व्हाट इज ऑप्शन डी से? इट इज नॉट ह्यूमन नेचर बट ह्यूमन कल्चर that is represented by institutions such as law and custom। wait a minute, where is law and custom mentioned? fourth para जी, वहां पे क्या बोला था? look at the map that we plotted। I hope आपके नोटबुक में है वो।
कि लॉज, कस्टम और टेक्नोलॉजी में सिमिलैरिटी है कि वो ह्यूमन नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बातें बताते हैं ह्यूमन नेचर की जो हम पसंद करते हैं, ठीक है। एंड व्हाट ऑप्शन डी सेइंग, नॉट ह्यूमन नेचर दैट इज रिप्रेजेंटेड, एग्जैक्ट बैंग अपोजिट, इस नॉट को हटाओ, इसको सही बनाना है तो। सो दिस इज फॉल्स व्हेन इट कम्स टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन पैसेज, रॉन्ग है। बाय बाय। ऑप्शन सी, वेरी ट्रिकी। This is where I, actually did not like the question setter. He made the job insanely difficult for the aspirant. Romantic conception of nature, जो पैसेज में बात किया है, उसको चाहिए थेरोटिकल लेजिटिमेसी। अब कहाँ पे लिखी है ये सब बातें, रोमांटिक लेजिटिमेसी वगैरह वगैरह? ये लिखी है आखिरी लाइन, अंडरलाइनिंग इट फॉर योर बेनिफिट। व्हाट डज इट मीन? और उसमें भी उसने डॉट डॉट देकर गैप क्रिएट किया है नैरेटिव में। इस लंबे चौड़े सेंटेंस का एक शॉर्ट में मीनिंग आपको मैं बताता हूं। इट मीन्स कि थोड़ा लेस रोमांटिक कंसेप्शन जो है हमारे सोसाइटी का, हमारे नेचर का, सॉरी हमारे नेचर का, उसको सोसाइटी ने थेरोटिकल लेजिटिमेसी देना चाहिए। ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जो लेस रोमांटिक कंसेप्शन है हमारे नेचर का, उसको चाहिए समाज की तरफ से लेजिटिमेसी। ओके, लेस रोमांटिक। एंड व्हाट डज ऑप्शन सी से? रोमांटिक कंसेप्शन को चाहिए theoretical legitimacy। रॉन्ग, दिस इज नॉट क्वाइट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पैसेज, क्योंकि हमें यहाँ पे लेस चाहिए रोमांटिक के पहले, ठीक है। वेरी ट्रिकीली वर्डेड, नॉट गुड, नॉट गुड एट ऑल। ऑप्शन बी, नेचर डिसाइड्स द पॉइंट at which society loses its capacity to control history। once again fifth para का part है ये। what does it say? nature is what lies at the limit of history। मतलब आप शायद इतिहास की अगर लकीर खींचो तो उसका जो आखिरी पॉइंट आपको मिलेगा वहां पे नेचर रहता है। एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? कि जहां पे सोसाइटी ने खुद की कैपेसिटी खो दिया है, खुद का कंट्रोल खो चुका है टू कंट्रोल अदर थिंग्स। ओके, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट जोन में जा चुका है कॉन्वर्सेशन। व्हाट डज ऑप्शन बी से? कि नेचर डिसाइड करता है कि कब सोसाइटी खुद का कंट्रोल खोएगी या खोएगा। वेट अ मिनट, नेचर डिसाइड कर रहा है कोई चीज, ऐसा तो कहीं पे लिखा ही नहीं। हमें तो बस बताया है कि नेचर रहता कहाँ पे, इट स्टेज एट द लिमिट ऑफ हिस्ट्री, दैट्स इट। एंड व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दैट पॉइंट, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दैट लिमिट? इट रिप्रेजेंट्स द पॉइंट जहाँ पे सोसाइटी हैज लॉस्ट कंट्रोल ओवर थिंग्स। But this is a distortion in B. It says कि nature is deciding when that happens. Wrong, brother. Very wrong. Bye bye. Answer reluctantly becomes option A. What does it say? Technologies form the environmental context and shape the contours of human society। मतलब हमको इन्फ्लुएंस करती है, एनवायरमेंट बनाती है टेक्नोलॉजी। क्या ये हमको दिया है पैसेज में? 100%। थर्ड पैराग्राफ का ये अंडरलाइन देखो, टेक्नोलॉजीज आर एन एनवायरमेंट rather than collective tool and they impact us। ओके, हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी वे ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करते हैं। तो दैट इज व्हाट ऑप्शन ए इज आल्सो सेइंग, एंड हेंस इट बिकम्स द आंसर बिकॉज इट इज समथिंग वी कैन इन्फर फ्रॉम द पैसेज, ठीक है। तो एज यू कैन सी, दो ऑप्शंस फिफ्थ पैरा के ऊपर थे जो ऑलरेडी हमको बाउंसर जा चुका था। सो इवन एज अ डेयरिंग एस्पायरेंट, आपने पैसेज पढ़ लिया, सॉल्व भी करने की कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल इतनी डेयरिंग में मत चले जाओ कि आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो जिसमें दो ऑप्शंस आर अबाउट अ पैसेज, अबाउट अ पैराग्राफ विच वी वर नॉट क्लियर अबाउट। तो फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, आई हैव गिवन टू यू द एक्सप्लेनेशन, बट फ्रैंकली स्पीकिंग फिफ्थ पैरा क्या बोल रहा है ये कुछ भी क्लैरिटी हम नहीं ला सकते अनलेस यू आर अ एक्सपर्ट इन ह्यूमैनिटीज, ठीक है। Coming to the next question, which of the following statements best reflects the main argument of fourth para? So, relief, fourth para। अगर ये fifth para बोलता ना तो मुझे भागना ही पड़ता यहाँ से, ठीक है। फोर्थ पैरा मतलब ये वाली चीज की सिमिलैरिटी है भाई टेक्नोलॉजीज में, लॉस, कस्टम्स में, एज फार एज दे आर कंसिडर्ड एज एनवायरमेंट, जो कि हमारे ह्यूमन नेचर के कुछ एस्पेक्ट्स को दिखाते हैं। अगर लॉज है प्रॉपर्टी की तो वो दिखाएंगे कि लोग इंटरेस्टेड है ओनरशिप में। टेक्नोलॉजी, गाड़ी घोड़ा है सोसाइटी में तो ये दिखाता है यस ह्यूमन नेचर वहां पे ऐसा है कि लोगों को घूमना फिरना पसंद है। तो यस, ये सिमिलैरिटी हमको दिखानी है। कौन सा ऑप्शन बोलता है? ऑप्शन ए। उसमें भी देखो कितनी घटिया वर्डिंग की है क्वेश्चन सेटर ने कि
use of double negative, not unlike each other. Two negative should cancel out each other, not cuts un. So what does it mean? Technology, law, and customs are like each other if considered as institutions. Oof. Yes. ठीक है. फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी, ऑप्शन बी सी डी आप फोर्थ पैरा पढ़ के इन्फर कर सकते हो दैट इट इज नॉट द आंसर. ओके, अगर हम फिर से सारे ऑप्शन डिस्कस करने जाए तो ये तो गया काम से, चौथे क्वेश्चन तक आप सर्वाइव ही ना कर पाओ. ओके, चलो देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वंस अगेन हॉरिबल हॉरिबल क्वेश्चन कमिंग इन. बहुत बिचिंग कर रहा हूँ यार मैं पैसेज के बारे में, कांट कंट्रोल. व्हाई? नाउ सी व्हाट इज दिस सेइंग. सारे स्टेटमेंट्स हम इन्फर कर सकते हैं पैसेज से एक्सेप्ट, meaning you will have three options which are legit with respect to the passage. One option will be like आप पूछ लोगे पढ़ के कि भाई ये क्या बात किया, ये तो कुछ बोला ही नहीं हमको. ठीक है, तो वन बाय वन करते हैं एनालिसिस ऑप्शन ए से लेके डी तक. व्हाट इज ऑप्शन ए से कि अगर आप एनालिसिस करो टेक्नोलॉजीज का, या फिर आपने ऐसा करना चाहिए एनालिसिस एनालिसिस जो कि एंगेज करे सोशल हिस्ट्रीज को उस टेक्नोलॉजी का. सोशल हिस्ट्री ये तो कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है. कहाँ पे देखा था हमने इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट ये वर्ड्स है यहाँ पर. ये सोसाइटी का एक बाइसिकल वगैरह वाला एक एग्जांपल था ना, देखो सोशल हिस्ट्री, हाईलाइटिंग इट फॉर यू. हर्मेन्यूटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब एक प्रॉपर एनालिसिस ऑफ टेक्नोलॉजी ने हमारे डिवाइसेस, हमारे हथियार, इनके अंदर जो बातें इम्प्लिसिट है, जो अनकही बातें हैं, उनको भी ओपनली बोलकर बताना चाहिए. दिस इज व्हाट दैट सेंटेंस मीन्स. मस्ट मेक एक्सप्लिसिट, खुलकर बोल के बताओ वो अनकही बातें जो हमारे इन डिवाइसेस में है. जब आप इस तरीके का सोशल हिस्ट्री स्टडी करोगे, एग्जांपल बाइसिकल का, इलेक्ट्रिसिटी का, वेपन्स का, तब जाके आपको अच्छे से ये एनालिसिस समझ आएगा. उफ, यस, ऑप्शन ए यही बात कर रहा है. तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन इन्फर फ्रॉम द पैसेज, इसलिए आंसर नहीं है. क्रेजी, क्रेजी. ऑप्शन बी, सिग्निफिकेंस ऑफ पैरेंटल ऑथोरिटी. वो वेट अ मिनट, कहाँ पे पैरेंटल ऑथोरिटी? थैंकफुली फोर्थ पैराग्राफ में, कि अगर एक समाज में पैरेंटल ऑथोरिटी दिखती है आपको तो यू कैन इन्फर कि वहां पे लोग इंटरेस्टेड है बच्चों की परवरिश में, उनकी सेफ्टी में, उनके ग्रोथ में. लेट्स गो सी. सिग्निफिकेंस ऑफ पैरेंटल ऑथोरिटी डज नॉट इम्प्लाई, okay, the question is worrying me now, does not imply what? That it is a permanent aspect of human nature. To be honest, when I read this option, I was really very confused कि ये बात कहाँ बोली है. And I was about to mark it as the answer when I realized, wait, no, fifth para first line, कि जो ऊपर बातें की है फोर्थ पैरा में, दे डू नॉट इम्प्लाई इटरनल नेचर. हमने किया था ना डिस्कस, दे इम्प्लाई कि ये बातें बदल सकती है, नॉट परमानेंट. टेक अ लुक एट योर नोट्स, व्हाट डज इट से. So that is what option B is saying. It implies कि ये parental authority, it is not a permanent aspect, not a permanent aspect. And yes, not permanent मतलब not eternal. Hence we can infer this from the passage and hence not the answer. खतरनाक है ना, खतरनाक है. ऑप्शन सी, क्रिटिकल थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजी आर्ग्यूज दैट. हे भगवान, कहाँ पे लिखा है ये? फर्स्ट और सेकंड पैरा में इसका नाम आया था. ओके. एज इश्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स बिकम मोर प्रोमिनेंट, we lose sight of the ways in which social order becomes more authoritarian. मीनिंग में मत खो, स्टैंडर्ड टर्म्स कहाँ पे लिखे हैं ये सारे? वो लिखे हैं फर्स्ट सेंटेंस में. दैट यस, क्रिटिकल थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजी बिलोंग्स टू अ ट्रेडिशन जो क्या सोचती है, ह्यूमन राइट्स का बढ़ावा मिलेगा बट बैकग्राउंड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होता रहेगा. यस यस यस, वी कैन infer this happening. Critical theory of technology is in line with this thought process. कालमांग भैया भी यही बात कर रहे हैं, फोकॉल्ट भी यही बोलता है, और ये थ्योरी भी यही बोलती है. वी कैन इन्फर इट. आंसर बिकम्स ऑप्शन डी. व्हाई? बिकॉज इसका फर्स्ट हाफ है पैरा 4 में और सेकंड हाफ है कुछ तो और ही लिखा हुआ. टेक्नोलॉजी सीक टू प्रिविलेज सर्टेन डिमेंशंस ऑफ ह्यूमन नेचर. वर्ड टू वर्ड फोर्थ पैरा में आपको यहां मिल जाएगा, जिसके ऊपर लेजर घुमा रहा हूं मैं. टेक्नोलॉजी इज एन एनवायरमेंट, as an environment it is an institution which privileges certain dimensions of human nature. Privilege certain dimensions of human nature. Word to word backed by fourth para. But आगे देखेंगे क्या लिखा है. But this happens at a high cost to lived nature.
Where is all this bullshit written? Lived nature, to be honest, आपको कंफ्यूज करने के लिए कहाँ लिखा है पता है? Lived nature is written over here. Okay, not to the nature of natural science. I think I should use a different color over here, but to the lived nature. ये तो आप देख रहे हो कितना घुमाने की, कितना ट्विस्टिंग हुआ है ऑप्शंस में कि कहाँ पे लिखा है टेक्नोलॉजीज और प्रिविलेजिंग नेचर, कहाँ लिखा है लिव्ड नेचर. So this part is nowhere implied in the fourth para or with respect to that narrative also, and hence we cannot infer it 100%. अगर ये सेंटेंस इस नेचर पे खत्म हो जाता है यहाँ पर, तो आप इसको बोल सकते यस वी कैन इन्फर इट फ्रॉम पैसेज. बट बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड पार्ट जो कि कहीं भी दिखा नहीं है पैसेज में, इसलिए दिस बिकम्स द आंसर. ओके, सो इनफ ऑफ ज्ञान इन दिस पैसेज. एज यू कैन सी, नहीं था अच्छा ये. So once again, I am going to repeat. Please do not waste your time and effort in bothering yourself about passages like this. अगर एग्जाम में आ जाता है ऐसा पैसेज तो प्लीज डोंट गो एंड अटेम्प्ट इट, नो मैटर हाउ गुड यू आर एट वीआरसी. बचा हुआ इतना बड़ा पेपर है, 24 क्वेश्चंस में से ऐसे पैसेज के 4 क्वेश्चन छोड़ भी दिए, दैट स्टिल लिव्स 20 क्वेश्चंस फॉर यू टू हैंडल. ओके, पैराजंबल इज अ फार बेटर पे ऑफ वाला जोन एज कंपेयर टू पैसेज लाइक दिस. ओके, so please keep all these things in mind. I made this video and this lengthy discussion only for your information purpose. If you like our content, please share and subscribe it with your friends, other CAT aspirants. If any comments, if any doubts, please drop them in the comment section. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.